नमस्कार। ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବୀଦତ୍ତା ମହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନେଇକି ଆସେ। ଆଜି ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ଯାଉଛି ମହାଦାରୁରୁ କି ପ୍ରକାରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥର ପ୍ରତିମା ଗଢ଼ାଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଉ ହେଇପାରେ ତ ଆମେ କିଛିଟା ଲୋକ ଏଇ କଥାରୁ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେ ଥିଲେ, ସିଏ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରୀରେ, ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବକୁ ଆଣିବା ଲାଗି, ସେ ଦେଖିଲେ ନୀଳମାଧବ ସେଇଠି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ବି କିଛି ଠିକଣା କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ବି କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥିଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁରା ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ କି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଆଣିକି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। କି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଇଠି କରିବି? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଏତେ ଟାଣ ଥିଲା କି ସିଏ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖିକି ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଦେଖିଲେ କି ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରାଯିବ, ତାପରେ ସେ ମହାଦାରୁର ଇଏଟା ପାଇବେ। ସେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ ନରସିଂହ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞଶାଳ ତିଆରି କରାଗଲା, ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ତିଆରି କରାଗଲା। ସେଇ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ସେ ହୋମ କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ଦିଆଗଲା, ସେଇଦିନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ କି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ହେଇକି ଗୋଟେ ସବୁକିଛି ମିଶିଗଲା। ଆଉ ସେ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି ଏ ସ୍ୱପ୍ନର ମାନେଟା କ'ଣ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ହେଲା କି ସେଇଟା ହିଁ ମହାଦାରୁ ହେଇକି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେ ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲେ, ସେ ମହାଦାରୁକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବି ମହାଦାରୁ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଚଳିତ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନିଜ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଶବର ରାଜା, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବାଣରେ ଭେଦିଥିଲା, ସିଏ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେହକୁ ତାଙ୍କର ଜଳା ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେହର ଯେଉଁ ମଝି ଭାଗଟା ସେଇଟା ଜଳି ନଥିଲା କି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଭାଗ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ମିଶିଲାନି, ସେଇଟା ଅଗ୍ନି ତାକୁ ଭସ୍ମ କରିପାରିଲାନି। ତ ସେଇଟାକୁ ସେ କହିଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଏଇଟାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଭସେଇ ଦେବ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଗ ଥିଲା ଦେହର, ସେଇ ଯେଉଁ ମଝି ଭାଗଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଦାରୁ ହେଇକି କଳିଯୁଗରେ ଫେରି ଆସିବି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି କି ମହାଦାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ମହାଦାରୁରୁ ଯେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା, ସିଏ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ଦେହ, ଯେଉଁଟାକି ମହାଦାରୁ ରୂପରେ ଭାସିକି ଆସିଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଶ୍ରୀ ବଳରାମ, ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ନିମ କାଠରୁ ତିଆରି। କାଠ ପ୍ରତିମା ଦେଖାଯାଏ ତ ଭାରତବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ଲାଗି ବହୁତ ପ୍ରଚଳିତ, ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ମନ୍ଦିରରେ କାଠର ପ୍ରତିମା ଅଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ କାଠ ପ୍ରତିମା ବହୁତ ପ୍ରଚଳିତ, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚଳିତ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ
तो से प्रतिमा भी अद्भुत। तो चलो अंतु आसवा शुणा कि प्रकार ये अद्भुत मूर्ति गढ़ागला। जितक महादारू आसिकी समुद्र कूल लगिले तापरे सी ताकू महादारू को शगड़ नहीं कि यज्ञ जो वेदी पाखक एमती नहीं जाई पारि नथिले राजा इंद्रदम्न। जो महादारू आसिकी समुद्र लगिला सी अचल हो पड़े, ताकू कई हटे पार्लेनी, गोटे इंच भी हटे पार्लेनी। बहुत चेष्टा चलला, राजा इंद्रदम्न पुणी हताश हो पड़े कि सबकि ठीक चलता। महादारू भी आसिला, यज्ञ भी आहुति परे महादारू आमे तांकर संधान पाइलु। आ महादारू आमे प्रतिमा गढ़ी से मंदिर रे स्थापना कराई जाता। पुणी कौन विघ्न घटिला, पुणी कहीं विघ्न घटिला। तांको पुणी से दिन राति रे स्वप्नादेश है कि काली सकाळे तुमर सबू चिंता दूर हो। जेतक विद्यापति राजा आउ अन्य तांका सहचरा कीर्तन ये सब नहीं कि महादारू को पूरा सम्मान सहित यज्ञशाला को नवा बसी थे। से माने सेठी देखिले कि हठात विश्ववसु महादारू को धरिकी कांदुचंती। से माने आश्चर्य हो जाते, कहीं से भाभी विश्ववसु आ नहांती, सी बोधे प्राण त्याग कर देइचंती, तांकर आ किछि संधान मिली नथिला। से हठात समस्ते तांको देखिकी आश्चर्यचकित हो गले। आ विश्ववसु जेतक महादारू को स्पर्श करले, से महादारू जोटा कि अचल हो जाइतला, जोटा एते भारी हो जाइतला कि कई हटै पार नथिले, से पूरा फूल भरी हल्का हो गले। सेटा होची जगन्नाथ संस्कृतिर फाउंडेशन। आर्ज्य और अनार्ज्य, उच्च और नीच को समान भाव में देखा लगी। जेतक विश्ववसु गोटे पटे आ गोटे पटे विद्यापति तांको टेकिकी शगड़ गाड़ी रे रखिले, से पूरा हल्का हो पड़े। आटा हूँ प्रथम अध्याय जगन्नाथ संस्कृति रे। तांको सम्मान सहित यज्ञशाला को नहीं गले। तापरे राजा इंद्रदम्न सियाड़े मंदिर निर्माण करी चली, बहुत जोर सोर मंदिर निर्माण चलीथिला। मंदिर पूरा भावरे तैयारी हो सारी माने हवा उपरे थिला, किंतु राजा इंद्रदम्न बहुत चिंतित थिले कि एते पर्यंत मूर्ति गढ़ा हैनी, ठाकुरंकर प्रतिमा हैनी, ताले प्रतिष्ठा करिबो कोन? आमे मंदिर को मूर्तिर प्रतिष्ठा करा जीव, केमती पूजा हब? से भावना रे से बुड़ीकी थिले, हताश होकी थिले। से विभिन्न देशरू जो बहुत ना करा शिल्पी मानकू बिंधाणी मानकू डाकी थिले एक कार्य लगी। आउ से बिंधाणी मानकू अनेक पुरस्कार दिया जीव बोली कि राजा स्वयं कही थिले। खाली तम मानकू विष्णुंकर अति रमणीय मूर्ति गढ़िबार अछि। उत्कल देश शिल्पकार लगी बहुत प्रचलित, आउ तार ना अच्छी से कि ता ना उत्कल थिला। उत्कृष्ट उत्कृष्ट शिल्पकार लगी उत्कल ना दिया हेथिला। सबु शिल्पीकार आसिले, राजा तांकू जाइकी कहले कि एटा सामान्य काठ याकू भाबनी, एटा स्वयं श्री महादारू। और यही महादारू आपण मानकू विष्णुंकर अत्यंत रमणीय मूर्ति तैयारी करिबा अच्छी, जोटा कि मंदिर जाइकी स्थापना हब। यह शुणिकी बिंधाणी माने कहले कि प्रभु आमे अनेक मूर्ति गढ़ीचु, आउ आमे निश्चित निज सबु माने अनेक ये भाव रे आमे ए मूर्तिटा निश्चित भल भाव रे गढ़ीबु। तांको मझिरे जड़े वरिष्ठ बिंधाणी थिले, जहाँकर ना थिला रत्नाकर महाराणा। रत्नाकर महाराणा को स्वयं राजा इंद्रदम्न पाट बिंधाणी रूपरे तांको नियुक्त करले। और से पाट बिंधाणी तांकर जहाँ समस्या आसी से विद्यापति को कहबे, विद्यापति राजा को कहबे। यही व्यवस्थाटा करागला। तापरे किछि दिन पर 7 दिन 8 दिन गड़ी गला। जो राजा पचारे कौन केते दूर मूर्ति आगे केते कौन मूर्ति गढ़ा है, विद्यापति चुप थिले, तांको पाखरे उत्तर नथिला। बिंधाणी माने भी बहुत व्यस्त हो पड़े, से माने कांदिबा अवस्था रे थिले, से माने कांदुथिले। आउ
भयभीत थिले कहीं से मैंने जानी कि राजा निश्चित भाव में दंडित कर राजा बहुत व्यस्त होते मंदिर हवा उपरे आउ याडे आम पाखे मूर्ति नहीं प्रतिष्ठा करने लगी सी जाइकी आसिले विद्यापति कहले कि महाराज से मैंने हताश से मैंने किसी कर महाराज रागी उठिले बहुत क्रोधित हो गले कि से मैंने चाहू ना से मैंने चेष्टा करना से मैंने पारू ना आउ कहते ये काठटा बहुत आंट आंट काठ बोलिकी से मैंने गोटे एक्सक्यूज दौरान विद्यापति कहले कि ना महाराज एटा पूरा भाव से नुहे से मैंने सतरे बहुत चेष्टा करचंती किंतु हताश हो पड़ती जी तांकर पाटबिंधाणी जे थिले रत्नाकर महाराणा से स्वयं विश्वकर्मा को विकल भाव में डाकी उठिले कि हे प्रभु आमर बटाड़ी मुगुर करत सबू हार मारी गई जिते भी तांकर औजार थिला सबू हार मारीगला किंतु से मैंने महादारू बकल भी छड़े पार्लेनी से मैंने हताश हो पड़े कि यहाँ केमी आम 10 वर्ष 15 वर्ष धरी यही काम ही कर चलीचु किंतु यहाँ की काठ जे आम बकल भी तार बाहर कर पारनु मूर्ति गढ़ा तो बहुत दूर कथा राजा भी चिंतित हो उठी पड़े कि एते ना करवा शिल्पकार को मु डाकिली तांको पुरस्कार देवार मु ये भी नहीं थिली किंतु से किछि भी हेलानी किछि भी माने आरंभ भी हैनी मूर्ति कि भाव में मूर्ति गढ़ा हम किए जे गढ़ब यहीटा ही भावुले हठात तांकर राज दरबार जड़े सैनिक आसी कहला कि प्रभु गोटे वृद्ध अत्यंत वृद्ध लोक आसिकी कहूँ मु राजा सांगे देखा करी राजा कहले हो ठीक अच्छे डाकिकी आण सी एते वृद्ध थिले कि निजे ठिया भी हो पार नथिले हाथ धरिकी अणागला माने ठिया हबार भी शक्ति नथला तांको पाखे राजा तांको देखिले कहले तमे कुह तमे निज परिचय दियो से कहले मु होची अनंत महाराणा आ मु जणे शिल्पकार मु जणे बिंधाणी आ मु आसीची आपणकर जो महादारू अच्छी से मूर्ति गढ़ा लगी राजा पूरा आश्चर्यचकित हो गले कहले तमे निजको देखुच तमे देखिच निजको तुम देह देखिच एते तमे वृद्ध कि तमे ठिया हवा तुम शक्ति नहीं तुमको साहाय्य न करले तमे ठिया हो पारुना तमे चली पारुना तमर निजर औजार जो बस्ता अच्छी ताकू उठेबा भी शक्ति नहीं तमे महादारू भलिया ये रु तमे मूर्ति गढ़ब सी भी एकला गढ़ब एटा असंभव से कहले कि महाराज मोर जो जोरटा थाए मनर जोर थाए देहर जोर न थाए मनरे जदि सेतिकी दृढ़ता अच्छी विश्वास अच्छी चेष्टा अच्छी ताले सबू असंभव संभव महाराज पाखे आउ किसी उपाय नथिला सी बहुत तांको कहले कि आपण बिंधाणी मानक कथा मानतु से माने बहुत चेष्टा करिसंती किंतु से माने यही काठरू मूर्ति गढ़े असमर्थ कहीं से काठ महादारू को गोटे साधारण काठ बोली भावुंट महादारू बोली भावुना राजा आउ किसी उपाय नथिला तांका पाखरे समय भी नथिला सी कहले ठीक अच्छी चेष्टा करिवारे कौन अच्छी से वृद्ध लोक को नहीं यज्ञशाला जोठी महादारू रखाई पूजा कराइतिला आउ सेठी व्यवस्था कराइतिला तांको मूर्ति गढ़िया लगी सेठी नहीं गले से देखिले से काठटा को निरीक्षण करले आउ निज नखरू से बकल छड़े चलले समस्ते देखिकी आश्चर्यचकित अरे आमर बटाड़ी मुगुर करत सबु हार मारिगला किंतु ए वृद्ध लोक जहाँ पाखे ठिया हबार शक्ति नाई एते वृद्ध सी निज नखरू एटा छड़े दौरान जी रत्नाकर महाराणा जे थिले पाटबिंधाणी सी आसी तांग गोड़ तले पड़गले हे महाराज तमे आमको उद्धार कर यही कलंकरू आपण किए आपण निश्चित गोटे साधारण मनीष नुहति आपण भितर किछि गोटे असाधारण जिनस अच्छी जो थी कि आप सामान्य नख मात्र रे ए बकल महादारू उठे देले से निजको अनंत महाराणा बोलिकी जन राजा को राजा भी देखिकी आश्चर्यचकित
कि निश्चित भाव में ए वृद्ध लोक भितर किसी गोटे जिनस अच्छी। तापरे से कहले हो मु विश्वास कली तम भितर सेतिकी अच्छी कि तमे ए महाद्वार मूर्ति गढ़ी पार। से वृद्ध लोकटी कहले किंतु महाराज मोर दुईटा शर्त अच्छी। प्रथम हैला आ मु सेटा एकांत रे आपन को कहबी। प्रथम हैला मु मते निस्तब्ध जगह दरकार जोटी किसी आवाज नथिबो कहीं महाद्वार मूर्ति गढ़ा गोटे तपस्या संगे समान। आ मु खाद्य पेय किछि करिबिनी। आउ ए यज्ञशाला को आपण कनारे बांधी देबे जो थी कि बाहर लोक भितर कौन हो देखि न पारंतु। आ भितर लोक भितर भी कौन चली भितर लोक भी बाहर जिनसटा किछि ताकू देखा न जाओ कि शुणा न जाओ एमती व्यवस्था मते करदेवे। आउ ता चारिपटे यज्ञशाला चारिपटे अष्टप्रहरी कीर्तन चलवा। से कीर्तन अटकबनी से पूरा अष्टप्रहरी कीर्तन चलवा। आउ एटा 21 दिन पर्यंत चलवा। आउ 21 दिन पर्यंत आपण मते कथा दियंतु कि आपण ए जो घर रे से यज्ञशाला जोटी मूर्ति गढ़ी सेटा आपण फिटेबे नहीं। से घर बंद होकी रहिबो। आउ द्वितीय शर्त होची जो बिंधाणी माने आसीचंती आपण तांकू दंडित करिवेनी। आपण से भाबंतुन कि से माने चेष्टा करि नांती आपण तांकू दंडित करिवेनी। आउ मूर्ति गढ़ी सारा परे जो मूर्तिटा यज्ञशाला मंदिर तो पुणी जीव सेटा केमती जीव। से जो बाटटा अच्छी से बाट जीवा लगी मूर्ति जीवा लगी से जो रथ तैयारी हब से जो रथटा ए महाराणा वंशधर ही करिवे। ए बिंधाणी माने जो माने रही जाइचंती से माने ही ए रथटा गढ़िवे या से कहिथिले। राजा आश्चर्यचकित कहले कि द्वितीय शर्तटा मु मंजूर अच्छी सेटा तो किसी असुविधा नहीं किंतु प्रथम शर्त तमे 21 दिन पर्यंत बिना खाई बिना पी कि भाव में रहिबो केमती रहिबो। तमे एते वृद्ध तमे तो मृत्यु हो जो तुम से ता भीतर मृत्यु हो। से बहुत व्यस्त हो पड़े। से कहले प्रभु तपस्या रे कौन भोक शोष लगे। लोक मैंने हजार हजार वर्ष धरिकी केते केते वर्ष धरिकी तपस्या करती। आ से तपस्यार शक्ति से तपस्या बल रे से माने बहुत किछि पाई जाती। तांक राजा तांक कथा काटी पारलेनी। कहले हाँ सत तपस्यार गोटे जोगर गोटे बल अच्छी। से बाध्य है कि तांकर कथा तांकर जो शर्त अच्छी सेटा मानिले। कहीं जदि राजा ताकू मानि न थांते अनंत महाराणा कहले ठीक अच्छे महाप्रभु आपण आउ काहाकू आनिकी ए मूर्ति गढ़ी दियंतु। राजा जानी थिले ए महादारू साधारण काठ नुहे। आउ सी आगुरु ही अनेक देश विदेश बहुत जहाँकर बहुत ना अच्छी बहुत क्षमता अच्छी तांको डाकी सारी आ से हताश हो सारी। आउ तापर ए वृद्ध लोकटी आछंती आ समय भी नहीं। से बाध्य है कि तांको शर्त मानिले। कीर्तन आयोजन करागला। से जो यज्ञशाला को कनारू भल भाव ढकागला ताकि किछि देखा न जाओ भीतर बाहर जिनस। आउ आरंभ हैला प्रक्रिया। गोटे दिन 2 दिन 3 दिन बीतीगला किछि शब्द नहीं किछि नहीं समस्ते व्यस्त। 14 दिन बीतीगला। राजा भी व्यस्त कि भाव में बिना खाए बिना पी एते दिन से मैंने बंची रही निश्चित भाव में किछि अघटन न घटी जाओ। 14 दिन पर श्री गुंडीचा महाराणी जे राजाधुम्न स्त्री थिले गुंडीचा माँ सी आसिले। तांकर जो सहचरी माने विद्यापति स्त्री और अन्य सहचरी माने आसी कहले कि महाराणी नगर बहुत अपवाद चलती। लोक माने राजा इंद्रदुम्न को बड़ा निष्ठुर बोलिकी कहते। सी बहुत निष्ठुर एते वृद्ध लोक को बिना खाइबा दे बिना पानी दे कि तांको मूर्ति गठन रे लगेइचंती। आउ से निश्चित भाव मृत्यु प्राप्त करेंगे किंतु कई जानी नथिले कि एई शर्तटा स्वयं अनंत महाराणांकर एटा राजा तांको उपरे थोपी नथिले। ए अपवाद शुणिकी गुंडीचा माँ जो राणी थिले से आ रही पालेनी कि प्रभु आमर मूर्ति न हैला नहीं पछे मंदिर रे
प्रतिष्ठा न हैला नाही पछे किंतु आमे गोटे वृद्ध लोकेर जो मृत्यु हम तार पापर भार मु नहीं पारिबिनी ना आपणक उपरे मु से पापर बोझ लादी पारिबी। आपण कृपा करिकी चलतु आउ से द्वारटा को खोली दियंतु। महाराज आगे चाहू नथिले कहीं से गोटे कथा देथिले कि मु 21 दिन पर्यंत खोलिबिनी से द्वार को किंतु से भी बड़ा व्यस्त हो पड़े कि एते 14 दिन हो गलानी एते वृद्ध लोक सी बंची कि भी नहीं ता भितर किसी स्वर शब्द शुभा जाऊनी। तापर से गले आ से द्वारटा कीर्तन बंद हैला। तापर कीर्तन बंद हैला परे से कानेइले कि किसी शुभा जाउची कि नहीं भीतर कामर आवाज कि तांको निश्वास प्रश्वास किसी शब्द शुभा जाउची कि नहीं। से विद्यापति को भी कहले कि हे पारे मु सुनी पानी तमे चाहिए देख एटा शुभा जाउची कि तुमको किसी आवाज स्वर शब्द शुभा जाउची किसी स्वर शब्द किसी भी नथिला। से व्यस्त है कि कहले ना बहुत हैला आउ एबे द्वारा हमें फिटे देबा। जो से द्वाराटा फिटेले से तो देखिले तीनोटी मूर्ति स्वयं जगन्नाथ बलभद्र आ सुभद्रा हलदिया थिले बलभद्र धड़ा आ श्री जगन्नाथ कला मूर्ति विद्यमान थिला। किंतु से देखिकी बड़ा दुखित हेले कहीं सेटा अर्ध जो कहती इनकम्प्लीट शेष न हवा मूर्ति तांकर हाथ नथिला तांकर पाद नथिला हाथ थिला अधा अधा हाथ पूरा हाथ गढ़ा ही नथिला तांकर पाद नाही तांको मुख भी पूरा भाव रे ये ही नथिला सब किछि खंडिया जो कहती खंडिया ठाकुर से अत्यंत दुखी हेले कि मु कौन करिली आ ता भितरे केही नाहांती अनंत महाराणा नाहांती कि केही नाहांती। से बुझीगले एटा सी सामान्य लोक नथिले कहा जाए से स्वयं विश्वकर्मा आसीथिले महाराणा जो समुदाय थिला तांको प्रार्थना शुणिकी स्वयं विश्वकर्मा देवता आसीथिले जगन्नाथ को गढ़िबा लगी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को गढ़िबा लगी कहीं बिंधाणी मानकर शिल्पकार मानकर इष्ट देव होचंती स्वयं विश्वकर्मा प्रभु। से देखिकी एते विचलित हो पाले कि सी निज देह त्याग करवा उपरे थिले राजा इंद्रदुम्न कहीं मो दोष लगी मो मूर्खामी लगी आज ठाकुर अपूर्ण होगी रही खंडिया होगी रही आ समुद्र रे निजको भसेबा बसते समुद्र को निज देह को समुद्र रे समर्पित करने उपरे थिले। हठात से सन्यासी आसती से कई नुहति राजा क्षमा करेंगे से ऋषि नारद थिले से ऋषि नारद जे महर्षि नारद थिले सी आसिले और सी कहले कि राजा इंद्रदुम्न तमे एते बड़ भूल करिया जाउछ सबु किछि जहाँ भी हुए संसार रे पत्र भी जदि हले तांकर इच्छा रे हले एते बड़ मूर्ति गढ़िबा लगी से केमिति भावरे पूजा हेबे केमिति तांको विश्व चिन्हब सेटा कौन आमे साधारण मनीष भाभी पारिबो। सी जे गढ़िबा लोक सी गढ़िचंती तमर किछि दोष नुहे तमे जदि प्रथम दिन रे भी ए द्वार खोली तांत तमे सेई रूप पाई तांत 14 दिन पर भी तमे जो द्वार खोलिल तमे सेई रूप पाई तांत आ 21 दिन पर भी जदि तमे द्वार खोली तांत तमे ए आजी जो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रार जो सुंदर प्रतिमा आमे देखुछु तमे एई रूप रे ही पाई थांत। राजा बुझिले आउ तांकर जो मूर्ति को की भाव रे स्थापना करा जाओ तापरे नारद तांको कहिले कि स्वयं ब्रह्मा ए मंदिर को ये करिवे पूजा करिवे आ प्रतिष्ठा करिवे मंदिर जो प्रतिष्ठा स्वयं ब्रह्मा करिवे और ब्रह्म लोक जाइकी राजा इंद्रदुम्न तांको निमंत्रण देवे। राजा इंद्रदुम्नकर एते पुण्य शक्ति थिला पुण्य बल थिला कि से सशरीर धरिकी ब्रह्मलोक जाय जीवार तांकर सेतिकी योग्यता थिला। ताले आपण सुनले तो केते सुंदर भावरे श्री जगन्नाथंकर प्रत्येक किंवदंती प्रत्येक जो कथा रे अनेक भक्ति आश्चर्य आउ जोटा कि मनीष बुद्धर परे
जिनस रही जोटा कि मु चेष्टा करछि आपण मानक आगरे पहुँचवा लगी। ताले आज एपिसोडटा थिला जगन्नाथ बलभद्रा सुभद्रा कि भाव आविर्भाव हेले। आशा करुच्ची आपण मानकु एई पर्यायटा बहुत भल लगी। जदि भल लगी ताले कृपा करिकी एटा लाइक करंतु, शेयर करंतु, आ हेई पारे तो मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। मु एमिति आपण मानंकु सुंदर सुंदर जगन्नाथंकर अद्भुत सुंदर भक्तिपूर्ण कथा प्रस्तुत करिबी। आउ आपण माने ताकू स्नेह सहित ग्रहण करिबे। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे।